چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ہفتے سے فیصلہ کن تحریک شروع کرنے کا اعلان، وکلاء اور عوام سے ساتھ دینے کی اپیل کر دی۔ بولے کہ امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے ایک طرف معیشت سکڑ رہی ہے تو دوسری طرف مہنگائی ہے۔ اجلاس کے خطاب میں احتجاجی تحریک کی کامیابی کے لیے گراس روٹ لیول تک کارکنان کو متحرک ہونا ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ہفتے سے فیصلہ کن حکومت مخالف تحریک کا اعلان۔ لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا وکلاء حقیقی آزادی کی تحریک میں ان کا ساتھ دیں۔ میرے وکلاء، آپ نے آج وعدہ کرنا ہے، میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں، میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے۔ عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت ملک کو دلدل کی طرف لے جا رہی ہے، موجودہ حالات پاکستان کے حق میں نہیں۔ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، جس دلدل میں ہمارا ملک جا رہا ہے، آج IMF اور ورلڈ بینک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا ٹائپ سچویشن میں جا رہا ہے۔ 50 سال تاریخ میں سب سے زیادہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے۔ تو ان حالات کے اندر ملک ایک بڑی جو کہتے ہیں سوشل انریسٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے لاہور آمد کے بعد پارٹی کے تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف نے کارکنوں کو تحریک کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پارٹی کی تنظیم سازی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی مضبوط ہوئی تو کوئی بھی حکومت 25 مئی کی طرح کا واقعہ نہیں دہرا سکے گی۔ اسلام آباد میں آخر چل کیا رہا ہے؟ تحریک انصاف یا کسانوں کا ممکنہ احتجاج؟ وفاقی دارالحکومت میں جگہ جگہ پولیس فورس تعینات کر دی گئی، خاردار تارے لگا کر راستوں کو بلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ ریڈ زون کو کٹینے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ریڈ زون کو کسانوں کے احتجاج کے باعث سیل کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بلال افریدی اپنی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات سے ہی سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات، تمام راستوں پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ ریڈ زون کو جانے والے راستے نادرا چوک، ایکسپریس چوک اور ایوب چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی نے سوال کیا کیا ریڈ زون کے داخلی راستے عمران خان کے خوف کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ریڈ زون کسانوں کے احتجاج کے باعث سیل کیا گیا ہے۔ ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ آ رہے ہیں ٹو پروٹیسٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک اچھی جگہ پہ بیٹھیں، وہاں پہ ان کو رسپیکٹ بھی دیں گے، ان کو پانی دیں گے، کھانا دیں گے، ان سے بات کریں گے، جس طرح سے وہ ملنا چاہتے ہیں لگائیں گے۔ پولیس کی جانب سے ریڈ زون میں کام کرنے والے ملازمین کے داخلے کے لیے صرف مارگلا روڈ اور سرینا چوک کو کھلا رکھا گیا ہے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے۔ موٹر سائیکلوں کو تو بالکل نہیں آنے دے رہے، گاڑیاں تو دور کی بات ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ کم از کم موٹر سائیکلوں کو تو آنے دیں، کیونکہ یہاں پر یو ٹرن ملے تو 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ میری ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، مجھے کافی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، میں کافی پیدل چل کے آیا ہوں جن کنٹینرز کی وجہ سے۔ ادھر ہر جگہ جو ہے وہ راستے بند ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے صوبوں سے بھی پولیس، رینجرز اور FCC کے 30,000 اہلکار مانگ لیے ہیں۔ پنجاب سے 20,000، خیبر پختونخوا سے 4,000 جبکہ رینجر سے 6,000 نفری مانگی گئی ہے۔ FCC کے 3,000 اہلکار اسلام آباد پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف ناروال اسپورٹ سٹی کمپلیکس کا ریفرنس خارج کر دیا۔ عدالت نے کیس کو سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس قرار دیتے ہوئے نیب پر برہمی کا اظہار کیا۔ نیب نے جولائی 2019 میں پہلی مرتبہ ناروال اسپورٹ سٹی کمپلیکس کے لیے اختیارات سے تجاوز پر کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منالہ نے احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس میں نیب ریفرنس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں؟ عدالت نے استفسار کیا کہ نیب آرڈیننس میں کیا آپ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ نیب نے سیاستدانوں اور بیوروکریٹ کا استحصال کیا ہے۔ آپ نے احد چیمہ کو 3 سال گرفتار رکھا، وہ باعزت بری ہو گئے۔ احد چیمہ بہترین افسر تھے، کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ شہریوں کی بھلائی کے لیے پروجیکٹ کو روک دیا، کیا کوئی مارشلہ لگا تھا تو ایسا کرنا ضروری تھا؟ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس کا ریفرنس خارج کر دیا۔ احسن اقبال نے کیس کو سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ناروال سپورٹ سٹی کو مکمل بھی کریں گے اور اسے مکمل کرنے میں جو اضافی اخراجات لگیں گے اس کی ریکوری عمران نیازی اور نیب سے کی جائے گی
चूँकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। नैब ने एहसन इकबाल को 23 दिसंबर 2019 को नारोवाल सिटी कम्प्लेक्स में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया। 25 फरवरी 2020 को एहसन इकबाल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली। 18 नवंबर 2020 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ। एहतसाब अदालत ने 23 फरवरी 2022 को एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की, जिसके खिलाफ एहसन इकबाल ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। एहसन इकबाल के हवाले से ही बात करें, जिनकी बर्रियत पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया है। उनका ये कहना है कि सारे मुल्ज़िमान नैब केसेस से ऐसे बरी हो रहे हैं जैसे कोई जुर्म कभी हुआ ही नहीं। मुल्ज़िम अपने मुखालिफ वकील का इंतखाब भी खुद ही कर रहा है। जहां कानून साथ नहीं दे रहा, घंटों में तरमीम कर दो। ये मजाक है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। PDM और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासतदान मानने से इनकार करते हुए कहा कि इमरान खान न सियासी था, न है और न ही आइंदा सियासत में उसका कोई किरदार है। वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है जो बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाती है। मज़ीद बताएंगे सक्खर से सज्जाद पाशा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के रडार पर आ गए। आलमी मुजरिम, नाअहल जमात का नाअहल लीडर करार दिया तो सियासतदान ही मानने से इनकार कर दिया। एक बैनुल अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर, वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फर्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है, अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म को इम्पोर्टेड चोर का लक़ब दिया। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुल्ज़िम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। और उनको अब न कोई सियासतदान तस्लीम करता है, न वो सियासी था, न वो सियासी है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर PDM सरबराह ने लबकुशाई से गुरेज किया। कहा किसी सियासी जमात पर तनकीद या सियासी बात का जिक्र नहीं करूंगा। हुकूमतों का फर्ज है कि इमदाद शफाफ तरीके से मुज़दासिरीन तक पहुँचे। ट्रांसजेंडर बिल पर बोले कि ये हमारी नहीं PTI की जरूरत है। ट्रांसजेंडर ये JUI की जरूरत नहीं है, ये PTI की जरूरत है। सक्खर के मदरसे मंजिल गाँव में JUI सरबराह ने 1000 सैलाब मुतासिरीन में राशन और नकद रकम की तकसीम की। सज्जाद पाशा, 92 न्यूज़, सक्खर। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन में ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से कामयाब होने वाले इमरान खान विजन पैनल के एजाज में मशरकी लंदन में इशाया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के अहदेदारों के साथ साथ कम्युनिटी के चीदा शख्सियात ने भी शिरकत की है। सलीम साबरी की रिपोर्ट। मशरकी लंदन में इमरान खान विजन पैनल के एजाज में तकरीब का एहतमाम मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत राजा शाकर कियानी और चौधरी बशारत ने किया। मुकामी रेस्टोरेंट में होने वाली पुरवकार तकरीब में PTI ईस्ट इंग्लैंड के 9 मुंतखब ओहदेदारान के साथ साथ कम्युनिटी की आला शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान की दुश्मनी में हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और इन पर झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं। PTI ओहदेदारों का कहना था कि इमरान खान हकीकी मानों में आवाम का दर्द रखने वाला लीडर है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हालिया सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए उनकी अपील थी, जिस पर ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद दी। मुल्क की मौजूदा माशी हालात का बेहतर हल साफ और शफाफ इलेक्शन में है। अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से मुंतखब होने वाले ओहदेदारान और पार्टी कारकुनान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। हमें अदलिया पर पूरा यकीन है कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसले करेंगे। सियासत जितनी गंदी लोगों ने कर दी इतनी थी नहीं, तो इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, उसका मुंह बोलता सबूत आपने देख लिया है कि जिस तरह कौम ने उस पर एतमाद करके, आप देखें कि हुकूमत में ना होते हुए उनकी एक कॉल पे लोग फोनों पे अरबों रुपए भेज रहे हैं और वहाँ पे आवाम के लिए इमदाद भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का। इमरान खान जो है इस वक्त पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन जो है तकरीबन वो डाउन हो रहा है माशी लिहाज से, और अगर पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शना है माशी लिहाज से तो जितने जल्दी हो सकता है इलेक्शन कराएं। आवाम की भी यही डिमांड है
और इमरान खान की भी। ये सिर्फ इल्ज़ामात किए आते हैं और ये सियासी मुकदमात है, और ये इनको आज अदालत में जाके मुंह की खाना पड़ी है कि जो उन्होंने दहशत गर्दी का मुकदमा किया और अदालत ने उनको खारिज कर दिया, क्योंकि दहशत गर्दी बनती नहीं है। अगर ये दहशत गर्दी बनती जो खान साहब के इन्होंने इल्ज़ाम लगाते था, तो मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे बैठ के आर्मी पे बोलता रहे, राना सनाउल्लाह बोलता है, फिर वो सारे ही दहशत गर्द हैं। अगर खान साहब दहशत गर्द है ना, तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना दहशत गर्दी से पाक नहीं है। शुरका का मजीद कहना था कि माशी हालात का वाहिद हल इलेक्शन है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर वजीर आजम बनेंगे। एशाइये में चौधरी रमजान, मलिक साजिद, खान आमिर, एहसन शाह, रफाकत शाह और दीगर शख्सियात ने इमरान खान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज, लंदन। लंदन के नवाही इलाके सैलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सैलाव की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह, सदर PTI साउथ ईस्ट मोहम्मद जाहिद राजा, नायब सदर PWA अब्दुल सत्तार समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भरपूर एहतियात दिए गए। मुतासरीन के लिए 7,000 पाउंड से ज़ायद का फंड भी जमा किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग की तकरीबात जारी। लंदन के नवाही इलाका सैलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सैलाव की जानिब से फंड रेजिंग इवेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। तकरीब में सैलाव के इलाका भर से ओवरसीज को शिरकत की दावत दी गई, जबकि MP तनमनजीत सिंह और सदर PTI साउथ ईस्ट मोहम्मद जाहिद राजा ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर शुरका को सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया और मदद की अपील की गई, और कहा गया कि मुश्किल की इस कड़ी में हम वतन भाइयों की हर मुमकिन मदद करें। जिसके बाद शुरका ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर मदद करते हुए 7,000 पाउंड से ज्यादा खतीर रकम जमा की। PWA के हॉल में मुनक्कद तकरीब में नन्हे बच्चों ने भी इस कार खैर में हिस्सा डालते हुए अपनी जेब खर्च के पैसे मुतासरीन के लिए बतौर फंड्स दिए। तकरीब से खिताब करते हुए सैलाव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह का कहना था कि मुश्किल की इस कड़ी में हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। सदर PTI साउथ ईस्ट मोहम्मद जाहिद राजा समेत दीगर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिलखोल का एहतियात दिए, जो खुशाइंद है। जमा की जाने वाली रकम जल्द अज जल्द पाकिस्तान रवाना की जाएगी। हमने ये कम्युनिटी के लिए अरेंज किया और जो फंड रिलीफ है उसके लिए मतलब फंड रेजिंग की, और बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे भाई है और बहनें आई हैं जिन्होंने ये आज 7,105 पाउंड टोटल डोनेशन दी है। हमने आज यहाँ पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन में एक छोटा सा इवेंट किया है, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए फंड इकट्ठे किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने तकरीबन 7,000 से ज़ायद डोनेशन इकट्ठा किया है, जो इंशाअल्लाह हम कुछ दिनों तक मुतासरीन तक पहुँचा देंगे। आज हमने सैलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के हॉल में एक फंड रेजिंग का एहतमाम किया था, और माशाल्लाह लोगों ने यहाँ पर दिल खोल के चंदा दिया है। और हमारा मकसद यही है कि जो हमारे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से हमारे बहन भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और उसके बाद लाखों घर जो है तबाह हुए हैं, उनके लिए ये हमने फंड रेजिंग का एहतमाम किया था। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन 40 लोग ते ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। Because of that, many of us got together, and it was wonderful that Pakistan Welfare Association organised a fundraising event ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦर्द होया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मदद के लिए हुकूमत बरतानिया की जानिब से भी अहम ऐलानात किए गए, जबकि बरतानिया में सिख कम्युनिटी की सरकर्दा तंजीमात ने भी माली सपोर्ट के साथ मुतासरा इलाकों में रज़ाकाराना तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर में हज़रत गंजबाग अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की मुनासबत से रूपरवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिससे मैनचेस्टर सलमा कराम और मुख्तलिफ शोबाई से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। पाकिस्तान से कारी मोहम्मद सैफुल्लाह कादरी खास तौर पर शरीक हुए हैं। राजा वाजिद की रिपोर्ट।
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा मानचेस्टर की कारोबारी और समाजी शख्सियत मोहम्मद जावेद ने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में महफिल का इनेकाद किया। महफिल में मानचेस्टर से उलमाए कराम और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कारी मोहम्मद सैफुल्लाह कादरी ने खसूसी तौर पर पाकिस्तान से शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए इमाम और खतीब अलामा अरशद मिसबाही, अलामा सैफुल्लाह कादरी, कारी ज़हूर अहमद सैफी और दूसरों ने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की दीन इस्लाम के लिए खिदमत को लाजवाल करार दिया। हमारे मोहतरम जावेद भाई ने बहुत अजीम शान उर्स सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी की महफिल सजाई और मानचेस्टर के कुर्ब व जवार से बड़ी तादाद में उलमाए किराम और कुर्राए किराम तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह बयान भी हुआ, नात खानी भी हुई और दाता साहब की मुबारक तालीमात के हवाले से दर्स दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको आपके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मानचेस्टर में आज हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक इनेकाद पज़ीर हुआ है, जिसमें मानचेस्टर के तमाम उलमाए किराम ने शिरकत की है और हजूर दाता गंज बख्श के बुलंदी दर्जात की दुआएं फरमाई हैं और अपने हक़ में दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वो रोशनी अता फरमाए जो हजूर दाता गंज बख्श को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से नसीब हुई। आमीन सुम्मा आमीन। फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, सखी कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। हमारे जावेद भाई लाहौर कबाबिश वालों ने हुजूर फैज़ आलम के उर्स का आखिरी दिन बड़ी मोहब्बत और एहतराम से मनाया। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। लाहौरी कबाबिश पे माशाल्लाह हजूर दादा साहब उर्स शरीफ मुनक़्क़द किया गया। मानचेस्टर के और दूसरे इलाकों के उलमा कराम आए हैं, हमें इज्जत बख्शी है हजूर दादा बख्श है। अगले साल हम उर्स मनाते हैं तो इनकी मेरा बड़ी मेहरबानी है जो मेहमान मेरे रेस्टोरेंट में आए हैं और हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। हजूर दादा साहब का फ़ैज़ हम पे हमेशा जारी है और जारी रहेगा और मेरे मेहमानों उलमा कराम की मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस पुरमसरत मौका पर आए और अपने ख्याल से हमें नवाजा और उनका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यहाँ पर हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाया गया लाहौरी के बाबश के ऊपर और इसके अंदर माशाल्लाह बहुत सारे अफराद शरीक हुए और हमें तो हदीस पाक में जिस वक्त जगह पर अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी देर बैठे रहे इस उर्स के अंदर अल्लाह ताला की रहमतों को हम लूटते रहे। इस मौका पर महफिल के मेज़बान मोहम्मद जावेद ने महफिल में शिरकत करने पर उलमाए कराम समेत तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। महफिल के इख्तिताम पर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में अलामा मोहम्मद मियाँ ने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और सलाह मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआ कराई। महफिल के इख्तिताम पर बारगाह रिसालत में दरूदो सलाम के नजराने पेश किए गए और शुरका की लंगर के साथ तवाज़ा की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मानचेस्टर। मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर आए एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध काजी बशीर के एजाज में सदर पीपल्स पार्टी गल्फ मियां मुनीर हंस की जानिब से शाया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल से मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध और सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध काजी बशीर बरतानिया से गुज़श्ता रोज निजी दौरे पर दुबई पहुंचे, जहां पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस ने उनके एहसास में इशाइया दिया। तकरीब में सैलाब ज़दगान की बहाली और फौरी मदद का आज़म किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी काजी बशीर का कहना था कि आज पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, सबसे ज्यादा मुतासिर सिंध है, जहाँ पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी
सीएम साहब समेत जितने भी मिनिस्टर हैं और जितने भी एमपीज हैं, सेनेटर हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम करें, लोगों को रिलीफ फराहम करें। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। अवाम सैलाब में डूबे हुए हैं और इमरान खान जलसे कर रहे। उनका मकसद मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना है। इमरान खान न्याजी साहब हैं, वो यहाँ पे जलसे कर रहे हैं, मतलब उनका कोई लगाव नहीं है। उनका ये है कि पाकिस्तान को तबाही के दाने पे पहुँचाएं। हमारी बिल्कुल जो है ये पार्टी की भी डिमांड है, इलेक्शन फेयर होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जब ये इलेक्शन अगर जो है ये टाइम पे होते हैं, अगर कुछ मिसहैप नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये इलेक्शन विन करेगी और इस मुल्क के जो यूथ के जो नौजवान लीडर हैं, बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तकरीब के मेज़बान मियां मुनीर हास ने काजी बशीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है तो काजी साहब उनके लिए हर वक्त तैयार होते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ पर आए, इन्होंने हमें टाइम दिया। इशाइया तकरीब में निसार महमूद खटक, ज़ियाउल हक बाबर, मखदूम रईस, कुरैशी एडवोकेट, सैयद अब्बास हज़ारा, शहजाद अख्तर एडवोकेट, मलिक असलम, इरफान कंबर गोंदल, आयशा मुनीर हास, नजमा जलानी, नजमा एहसान और दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।